السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ خیریت سے ہیں نا؟ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ بہت اچھے سے بقوۃ الادب میں الفاظ و معانی یاد کر رہے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کم وقت میں سینکڑوں الفاظ یاد کر لیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ الفاظ آپ کے بہت کام آئیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیشتر الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور بہت کم الفاظ ہیں جو ہماری زندگی سے متعلق الفاظ ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم جلد ہی اس کو پورا کریں گے۔ تو آئیے، ہم جو الفاظ کا سلسلہ چل رہا تھا تعلیم اور اسکول کے تعلق سے، اس کے تعلق سے دوبارہ ہم کچھ الفاظ آپ کے سامنے ہم لکھوا رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے اور ان الفاظ کو لکھتے رہیے اور یاد کرتے رہیے۔ ہاں بچوں، ہم نے ابھی تک تعلیم اور اسکول کے متعلق بہت سارے الفاظ لکھا اور یاد کیا ہے۔ اب اور نئے الفاظ کچھ آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے لکھیے نسختن۔ یہاں لفظ لکھیے نسختن، نسختن، یہ پڑھیے، اردو لفظ ہے۔ آپ نسخہ لفظ یہ بہت سنتے ہوں گے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا ہے۔ تو نسخہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہاں الفاظ کا آپ ایک کالم بنا لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے معانی، الفاظ کے ساتھ معانی کا ایک کالم، اور ادھر جمع کا ہم لکھ دیں گے۔ نسختن کے معنی ہوتے ہیں نسخہ، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک لفظ آتا ہے اس کے لیے ڈپلیکیٹ، جو انگلش کا لفظ ہے۔ تو نسختن اس کے معنی ہوتے نسخہ یا کاپی، اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ لکھ دیجیے کاپی، یعنی کوئی چیز آدمی جو ہے نقل کرتا ہے تو اس کے لیے نسخہ لفظ بولتے ہیں عربی میں، اور اسی کو دوسرے لفظ میں انگلش لفظ میں بولتے ہیں ڈپلیکیٹ۔ یہ جو ہے لفظ آپ سنتے ہوں گے، بہت استعمال ہوتا ہے ڈپلیکیٹ، یعنی کسی چیز کو نقل کر کے دوبارہ کسی چیز میں نوٹ کر دیتے ہیں، تو نسخہ بولتے ہیں۔ نسخہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ایک نسخہ دے دیجئے، ایک کتاب دے دیجئے۔ تو چونکہ ایک کتاب دوسرے کتاب سے نقل کی جاتی ہے، چھاپی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو نسخہ بولتے ہیں۔ تو یہاں نسختن کاپی، ڈپلیکیٹ، جمع نسخن، نسخن۔ تو یہ بہت استعمال ہوتا ہے روزمرہ کی زندگی میں، ہم یہ الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کاپی کتاب جس میں ہم رکھتے ہیں، جس میں حفاظت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیگ، کے لیے عربی میں کہتے ہیں محفظتن۔ بہت ہی اچھا لفظ ہے۔ دیکھیں، محفظہ جو لفظ ہے حفاظت سے بنا، یعنی حفاظت کرنے کا آلہ، یعنی ہماری کاپی، کتاب، قلم ہم جو ہے جس میں محفوظ رکھتے ہیں پڑھائی کے سامان، تو اس کا نام ہی ہے محفظہ۔ اب اس کو آپ کیا لکھیں گے؟ بستہ لکھ لیجئے، بیگ لکھ لیجئے۔ تو بستہ، بیگ، یہ جو ہے ہم جن میں کتابوں کو محفوظ کرتے ہیں، تو بیگ بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم آج کل جو ہے بیگ ہی زیادہ استعمال کر رہے ہیں، بستہ بہت کم لوگ بولتے ہیں۔ اس کی جمع جو ہے محفظاتن، الف تے صرف جوڑ دیجئے، بس آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ محفظاتن، محفظتن، بستہ، بیگ، جمع محفظاتن۔ ایسے ہی مکتوبن، مکتوب لفظ جو ہے یہ آپ سنتے ہوں گے، کاتب، مکتوب، یہ کتابت سے بنا ہے۔ اب کوئی بھی چیز لکھی رہے تو اس کو مکتوب بولیں گے، لیکن خاص طور پہ خط جو لکھتے ہیں، لیٹر جو ہم جس کو کہتے ہیں انگلش میں، تو اس کے لیے مکتوب بولتے ہیں۔ اس کو ہم اردو میں خط بولتے ہیں، خط، عربی میں خط کو مکتوب بولتے ہیں۔ خط کے معنی عربی میں لکیر کے ہوتے ہیں، تو مکتوب یہ لیٹر جس کو ہم انگلش بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو مکتوب بولتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے مکاتیب، مکاتیبو۔ یہ لفظ جو ہے آپ اس سے پہلے مکتب کا جمع مکاتبو آتی، اس میں یا جوڑ دینا مکاتیب ہوگا، تو مکتوبن خط، لیٹر، جمع مکاتیب۔ ایسے ہی خط کے اوپر جو ہم پتہ لکھتے ہیں، ایڈریس لکھتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں عنوان، عنوانن۔ ہم عنوان بولتے ہیں ٹاپک کو،
लेकिन उन्वान अरबी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसके लिए कई जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो उन्वान मजमून के माने में भी आता है, और यहाँ जो है उन्वान के माने एड्रेस, पता। तो अरबी ज़ुबान में बहुत कुशादगी है, एक एक लफ्ज़ कई मानों में इस्तेमाल होता। तो एड्रेस और पता जो हम लिखते हैं ख़त में, तो उसके लिए ये उन्वान बोलते हैं। ख़त पे क्या उन्वान है, क्या एड्रेस है, इसकी जमा भी अनावीन आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा लफ्ज़ है कि जो उर्दू में भी बोलते हैं, लेकिन उर्दू में उन्वान जब बोलेंगे तो वहाँ सिर्फ टॉपिक मुराद होगा। आप किस उन्वान में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे किताब लिख रहे हैं, तो उन्वान वहाँ उर्दू में दूसरे मफ़हूम में, और अरबी में जब बोलेंगे आपका उन्वान क्या है, तो वहाँ उन्वान माने एड्रेस, पता। इसी तरीके से हम ख़त जो रखते हैं लिफाफे में, उसको अरबी में कहते हैं ज़रफ़ुन। अब देखिए, अब यहाँ किताब में थोड़ी सी मिस्टेक है, जो पे नुक्ता नहीं दिया तो लिखा हुआ, हालांकि तरफ माने किनारा होता है, यहाँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है। असल यहाँ जो है ज़र्फ़ माने लिफाफा, यानी ख़त जिसमें रखते हैं, तो आप इसको ज़र्फ़ लिख लीजिए, ज़र्फ़ुन माने लिफाफा। और ये भी आपको मैं बता दूँ, इससे पहले भी ज़र्फ़ गुजरा है। ज़र्फ़ के माने बर्तन भी होता है, ज़र्फ़ के माने अक्ल भी होता है। आप उर्दू में कहते हैं कम ज़र्फ़, यानी कम अक्ल। तो लेकिन ज़र्फ़ जो है अरबी ज़ुबान में बहुत माने में आता है। ज़र्फ़ के माने वक्त भी होता है, ज़र्फ़ के माने बर्तन भी होता है, और ऐसे जगह के लिए भी ज़र्फ़ का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जो है लिफाफा बोलेंगे जब ख़त का के लिए इस्तेमाल करेंगे। जमा ज़ुरूफ़, जमा ज़ुरूफ़, यही अल्फाज हर जगह आपको मिलेंगे, यानी लफ्ज़ वही है, माने अलग अलग हैं। बर्तन के बारे में अगर बात होगी तो ज़र्फ़ माने बर्तन हो जाएगा। अगर सूझबूझ किसी इंसान के बारे में कोई बात करेगा कि वो किस तरह का उसका ज़र्फ़ है, यानी किस समझ का आदमी है, तो सोच का आदमी है, तो वहाँ भी ज़र्फ़ इस्तेमाल करते हैं। तो ज़र्फ़ ये यहाँ लिफाफा के माने में है। फिर इसी तरह टिकट जो लगाते हैं लिफाफे पर, उसको कहते हैं ताबेउन। ताबेउन, ताबेउन माने होते हैं लिफाफा, लिफाफा पे जो टिकट लगाते हैं, डाक टिकट। ताबेउन डाक टिकट, डाक टिकट, डाक टिकट हम जो है इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो खतूत का सिलसिला नहीं चल रहा, लेकिन बहरहाल अल्फाज माने हमें याद रहना चाहिए। तो ताबेउन डाक टिकट, या कोई भी टिकट अगर है जो कहीं चिपकाने के लिए इस्तेमाल होता है इस टाइम, जिसको हम बोलते हैं, तो ताबेउन डाक टिकट। इसकी जमा आती है तवाबेओ, इसकी जमा है तवाबेओ। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम है, टिकट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खतूत वगैरह लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अल्फाज हम किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो ताबेउन जमा तवाबेओ डाक टिकट। इसी तरह जो हम लिखते पढ़ते हैं उनमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसमें एक चीज़ है समगुन, गोंद, या जिसको हम इंग्लिश में गम बोलते हैं, तो उसको कहते हैं समगुन। आपके किताब में लिखा समगुन, इसके माने होते हैं गोद या जो है गम। आप जो है दोनों लफ्ज़ लिख लीजिए। आजकल लोग गम ज़्यादा बोलते हैं, तो गम, गम चिपकाने की कोई भी चीज़ हो, इसकी जमा नहीं है। पढ़ने लिखने के लिए, उजाले के लिए आजकल जो है बिजली है, लाइट है, ये सब चीज़ें। पहले लोग मोमबत्ती, चिराग वगैरह जलाते थे, तो इसलिए पढ़ने में ज़्यादा काम आती है ये मोमबत्ती, तो उसको कहते हैं शमउन। शमउन माने होते हैं मोमबत्ती, ये पढ़ने में काम आती है। मोमबत्ती का इस्तेमाल बहुत करते थे पहले लोग, अगर लाइट चली जाए या कभी जो है चिराग में तेल नहीं है, तो इमरजेंसी में ज़्यादा जो है ये मोमबत्ती काम आती है। इसकी जमा आती है शुमूउन, शुमूउन। इससे पहले भी गुजर चुका है, लेकिन यहाँ चूँकि पढ़ने लिखने वाली चीज़ों में इसका शुमार है, इसलिए यहाँ जिक्र कर दिया गया। ऐसे ही जैसे ख़त हम भेजते हैं, कई हफ्ते लग जाते हैं डाक के ज़रिए, लेकिन एक दूसरा ज़रिया है जो टेलीग्राम, उसको पहले कहते थे, अब नहीं चल रहा है, लेकिन ये लफ्ज़ जो है बहुत मशहूर है। तो इसको अरबी में कहते हैं टेलीग्राफ, टेलीग्राफुन। यहाँ जो है आप टेलीग्राफ को उसी को तय कर दिया आटे को, तो तिलग्राफ, टेलीग्राफ, यानी जो भी बोलने में आसानी हो,
تو تل غرافن، یہاں جو ہے لفظ جو ہے ما کو فا سے بدل دیا ہے، تل غرافن، ٹیلی گرام کو تل غرافن۔ یہاں اردو میں انگلش میں ایک ہی لفظ بولتے ہیں ٹیلی گرام، ٹیلی گرام۔ ٹیل کے معنی ہوتے ہیں انگلش میں دور، اور گرام معنی خط، پیغام۔ تو ٹیلی گرام نے دور سے جو پیغام بھیجا جائے، تو پہلے جو ہے ٹیلی گرام لوگ کرتے تھے جلدی کوئی پیغام بھیجنے کے لیے، تو اس کو عربی میں ٹیلی گراف بولتے ہیں۔ اب اس کو اگر جمع بنانا ہو، بہت سارے ٹیلی گرام ہیں، تو اس میں الف تے جوڑ دیں گے تو تل غرافاتن ہو جائے گا، تل غرافاتن، تل غرافاتن۔ یہ جو ہے بہت آسان جمع بنانے کا طریقہ، الف تے کہیں بھی اگر جوڑ دیتے ہیں تو وہ جمع بن جاتا ہے لفظ، کوئی بھی عربی کا زبان ہو۔ ایسے ہی پہلے جو ڈاک آتی تھی یا ڈاک جس کو ہم بولتے ہیں، تو برید اس کو کہتے ہیں، برید مانے ڈاک، ڈاکیا جو چیزیں لا کے دیتا ہے گھروں پہ، ڈاک جس کو کہتے ہیں، آج ڈاک آئے تو اس کے لیے عربی میں برید بولتے ہیں، برید مانے ڈاک۔ اب جو چیزیں بھی برید، خط ہو یا سامان ہو، جو بھی چیزیں ہیں ڈاک سے آتی ہیں، اس کو برید بولتے ہیں۔ اس کی جمع بورودن، اس کی جمع بورودن، بریدن جمع بورودن کے معنی ڈاک۔ اور جو ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں خاص طور پہ اسکولوں میں، جو مشہور سبجیکٹ ہیں ان میں جیسے الحساب، آپ اردو میں بھی الحساب ہی بولتے ہیں، میتھمیٹکس بولتے ہیں یا میتھس بولتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں الحساب۔ اب اس کو آپ حساب لکھ لیجئے، حساب بھی بولتے ہیں، ہم حساب پڑھ رہے ہیں، حساب کا پیریڈ ہے۔ ایسے ہی ایک ریاضی بھی بولتے ہیں، الریاضیتو، الریاضتو ایک جو ہے ورزش کا جو پیریڈ ہوتا ہے، حساب، میتھمیٹکس، ریاضی، آپ اس میں لکھ لیجئے، ریاضی بھی لکھ لیجئے، ریاضی۔ تو آپ حساب بھی کہتے ہیں، ریاضی بھی بولتے ہیں، تو ریاضی یا حساب، الحساب کہیں گے وہاں۔ ہاں، الریاضتو، الریاضہ، آپ جانتے ہیں کہ ورزش کے لیے کچھ کھیلتے ہیں، کچھ پیریڈ رہتے ہیں اسکولوں کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کھیل کا پیریڈ ہے۔ الریاضتو، الریاضتو مانتے ہیں ورزش، الریاضتو ورزش۔ اب ویسے اردو میں بولتے ہیں کہ عبادت و ریاضت، تو ریاضت جو لفظ ہم سنتے ہیں یہ اسی ریاضت ہی سے بنا ہے، اردو میں بھی ریاضت استعمال کرتے ہیں۔ تو ورزش ہے یا محنت کا کوئی کام ہے تو اس کے لیے ریاضت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کھیل کود میں آدمی محنت کرتا ہے، پسینے نکلتے ہیں، محنت کرنے سے آدمی کو پسینہ نکلتا ہے، تو یہ ریاضہ اور ریاضت ہو، کھیل کا یا جو ورزش کا پیریڈ، یہ سبجیکٹ چلتا ہے اسکولوں میں۔ ایسے الجغرافیتو، ایک پیریڈ آپ پڑھتے ہوں گے الجغرافیتو، آپ اردو میں بھی وہی بولتے ہیں، انگلش میں جغرافی بولتے ہیں، اسی سے بنا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے انگلش میں، الجغرافیتو، الجغرافیتو، یعنی ایک لفظ جو ہے ایسا ہے کہ جو عربی، انگلش، اردو سب میں وہی بولتے ہیں۔ اب اس میں ہم صرف لکھنے کا فرق ہوتا ہے، جغرافیہ، جغرافیہ یہ جو ہے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ڈرائنگ کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، الرسم۔ الرسم اگر آپ دیکھیں، رسم مانے تصویر بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ پڑھنے کے لیے اگر سبجیکٹ مانیں گے تو تصویر جس سے بنائیں گے اس کو ڈرائنگ بولتے ہیں، تو ڈرائنگ کا پیریڈ ہوتا ہے، الرسم اس کو بولتے ہیں۔ تو یہاں آپ لکھ دیں ڈرائنگ، ڈرا، اور رسم کے معنی تصویر، فوٹو، بہت سارے، اس کی جمع رسوم آتی ہے اگر فوٹو کا معنی، اگر رسم صرف ڈرائنگ مانیں گے تو یہ جو ہے میننگ اس کا ڈرائنگ ہوگا۔ یہ جو ہے الفاظ تھے جو ہم اسکولوں میں تعلیم سے متعلق ہم یہ بولتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم جو ہے کچھ رنگوں کے متعلق، رنگوں کا نام نوٹ کر لیتے ہیں، کلر کی ضرورت پڑتی ہے ہر جگہ، تو کون کون سے کلر ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو ان الفاظ کے بارے میں
हम लिख लेते हैं। तो यहाँ एक हेडिंग डाल दीजिए, रंगों के नाम। यहाँ लिख देते हैं रंगों के नाम। तो बच्चों आइए हम रंगों के बारे में कुछ अल्फाज नोट कर लेते हैं। तो रंग जो होता है, कितने कलर हो हम जो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं या हम देखते हैं, तो उसके लिए पहले हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं रंगों के नाम। रंगों के नाम। हम जो रंग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं उसमें जैसे एक सबसे ज़्यादा मशहूर जो है कलर होता है वो है कालापन, काला रंग। तो उसके लिए अरबी में सवाद बोलते हैं। यहाँ लिखिए सवादुन। सवादुन के माने होते हैं कालापन, यानी ऐसा रंग जो काला हो। ये उर्दू में सियाह भी बोलते हैं और ऐसे ही कालापन, यानी ऐसा रंग जो काला रहे। तो एक कलर जो है आप काला बोलते हैं, सियाह बोलते हैं। और इसी तरीके से सफ़ेद के लिए बयाज। ये दो रंग ऐसे हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिनको लोग ज़्यादा जो है बोलते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो बयाजुन, बयाज के माने होते हैं सफ़ेदी। कोई भी चीज़ जो सफ़ेद है, जिसके अंदर कलर सफ़ेदी की मिले, सफ़ेद कलर का, तो उसको बयाज कहेंगे, सफ़ेद कलर वाला। ऐसे ही खुदरतुन, सब्ज़ के लिए सब्ज़ी, खुदरतुन। खुदरतुन ये अरबी ज़ुबान में खुदरतुन माने सब्ज़ी भी होता है, यानी जो सब्ज़ी खाते हैं। ऐसे ही खुदरतुन जो कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको उर्दू में सब्ज़ी बोलते हैं, यानी हरी जो बोलते हैं, हरा जिसको कहते हैं, उसको सब्ज़ से सब्ज़ी। अब सब्ज़ी जो कलर के लिए आप बोलिए या सब्ज़ी खाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, दोनों के लिए ये खुदरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ऐसे कलर जो मशहूर है लाल कलर, सुर्ख जिसको बोलते हैं, उसके लिए अरबी में आता है हुम्रतुन। हुम्रतुन, हुम्रतुन माने होते हैं सुर्खी। ये कलर के नाम हैं, सुर्खी। और ऐसे ही जो पीला हो, जर्द हो, उसको कहते हैं सुफरतुन। स्वाद से बनता है ये। सुफरतुन के माने होते हैं जर्दी। जर्दी, जर्दी माने पीलापन। आप इसमें लिख लीजिए चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोग पीला और जर्द नहीं समझ पाते हैं। तो पीलापन, इसको उर्दू में कहते हैं पीलापन। जर्दी या पीलापन, ये भी एक कलर है। और ऐसे जर्द से मुशाबे अगर है, करीब तर, जैसे जर्दी माइल के लिए सुफारतुन। यहाँ सफारतुन लिखा है, लेकिन असल है सुफारतुन। सुफारतुन ये एक लफ्ज़ है, किताब में सफारतुन लिखा है, लेकिन उसको आप पेश बना दीजिए ज़बर को। इसके बाद तो जर्दी मायल। जर्दी मायल यानी बिल्कुल जर्द ना हो, हल्का जर्द, तो उसको कहते हैं जर्दी मायल। ऐसे ही सुफार लफ्ज़ जो है, ये अंडे के अंदर जो जर्दी होती है उसको भी सुफार बोलते हैं। हाँ, इस सुफारतुन जो लफ्ज़ है, अगर इसको जमा बनाना चाहें तो इसके लिए ते हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सुफारुन। यानी इस्तेमाल होता कहीं कहीं इसका जमा, जैसे जर्द कोई चीज़ है, पीलेपन वाली चीज़, उसको सुफारतुन बोलते हैं। जैसे मैंने बताया अंडे में जो जर्दी होती है उसको भी सुफारा बोलते हैं। ऐसे नीलगू, जैसे आसमान क्या है, नीला है, तो नीलगू आसमान, तो उसके लिए जो कलर है वो जुर्कुन। जुर्कुन, जुर्कुन लफ्ज़ जो है ये नीलापन के माने में आता है। इसके माने नीलापन। नीलापन, नीलापन जो है आप जानते हैं आसमान है या कोई भी कपड़ा होता है, बोलते हैं नीलापन इसके अंदर पाया जाता है। तो जुर्कुन नीले कलर का। ऐसे ही नुज़रतुन, एक लफ्ज़ है नुज़रतुन। नून ज़ात नुज़रतुन। ये नुज़रतुन लफ्ज़ जो है तरोताज़ा, यानी एकदम देखने में बहुत अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। तो एक कलर ऐसा होता है उसको देख करके आदमी खुश हो जाए, तो उसके लिए नुज़रतुन बोलते हैं। इसको कहते हैं तरोताज़ा। तरोताज़ा, खुश करने वाला कलर, तरोताज़ा एकदम अच्छा जो देखने में लगे। उसी में जैसे चमक दमक बोलते हैं तरोताज़ा या
चमक दमक यानी देखने में बहुत अच्छा लगे तो चमक दमक, देखने में ऐसा कलर, सुनहरा भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो कलर के ताल्लुक से हम देखते हैं कि लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये चंद अल्फाज ये रंगों के ताल्लुक से हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, अभी ये जो अल्फाज आप पढ़े हैं तालीम से मुताल्लिक या स्कूल में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारे अल्फाज हम जो अभी लिखे हैं इनको आप याद कीजिए और इंशाअल्लाह इसके बाद और कुछ नए अल्फाज बताएंगे। तो यहाँ आप जो अल्फाज हम पढ़ चुके हैं एक मरतबा फिर से इसका यादा कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो है जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको दोबारा कभी पढ़ने में हमें मुश्किल ना आए। तो यहाँ देखिए, अभी जो स्कूल में हम इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं जिनमें पढ़ने लिखने से मुतालिक जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है स्कूल में या घरों में हम इस्तेमाल करते हैं तालीम के ताल्लुक से, तो इसमें से आपने जैसे बहुत सारे अल्फाज लिखे हैं, उन्हीं में से देखिए अभी जो हमने पढ़ा है उसमें पहला लफ्ज़ है नुस्खतुन। नुस्खतुन ये लफ्ज़ क्या है? कॉपी या डुप्लीकेट। इसके लिए जमा जो आती है नुसखुन, नुस्खतुन जमा नुसखुन। ऐसे बस्ता या बैग जो हम ले जाते हैं जिसमें किताब कापी वगैरह, महफज़तुन, बस्ता बैग जमा महफज़ातुन। ऐसे मकतूबुन, ख़त जमा मकातीब, मकातीब मकतूब की जमा है। उन्वानुन, पता एड्रेस, अनावीन, हम जो है जो ख़त पे लिखते हैं पता एड्रेस उसको अरबी में उन्वान बोलते हैं। ऐसे ज़रफ़ुन, लिफाफा जमा ज़ुरूफ़ुन, और ताबिउन, डाक टिकट जमा तवाबिउ। तो यहाँ देखिए बहुत आसान अल्फाज हैं, ये बहुत सारे अल्फाज इसमें हम सुनते भी रहते हैं, जैसे उन्वान है, ज़र्फ़ है, पढ़े हुए अल्फाज हैं। हाँ, ऐसे गोंद जिससे हम जो है कोई चीज़ चिपकाते हैं तो समगुन, समगुन गोंद जमा इसकी नहीं आती है, ये कोई भी चीज़ अगर चिपकानी है उसको समगुन बोलते हैं। शमउन माने मोमबत्ती जमा शमूउन। टेलीग्राफुन, टेलीग्राफुन, टेलीग्राम ये टेलीग्राम उर्दू में बोलते हैं और अरबी में टेलीग्राफुन बोलते हैं, इसकी जमा जो है टेलीग्राफातुन बोलते हैं। ऐसे बरीदुन, डाक, यानी जो चीज़ें हमें डाक से मंगाते हैं उसको डाक बोलते हैं, उसकी जमा बोरुदुन, बरीदुन जमा बोरुदुन। जो हम मज़ामीन पढ़ते हैं अपने स्कूलों में उनमें अल हिसाब, हिसाब, रियाजी, और रियाजतो वर्जिश या उसको हम गेम भी कह सकते हैं। ऐसे अल जोग्राफिया, जोग्राफिया का पीरियड होता है। और रस्म, ड्राइंग, तस्वीर कशी वगैरह, तस्वीर बनाते हैं ड्राइंग से। ऐसे रंगों के नाम जो हम कलर जो है इस्तेमाल करते हैं पढ़ने लिखने में या कहीं बोलने में, तो उसमें जैसे सवादुन, सियाह, कालापन, कहीं काला कोई चीज़ है। बयाजुन, सफ़ेदी, और खुजरतुन, सब्ज़ी, हमरतुन, सुर्खी, लाल जिसको कहते हैं, और सुफरतुन, जर्दी, पीलापन जिस चीज़ में हो। सुफारतुन, जर्दी माल, यानी जर्द पूरा ना रहे लेकिन जर्द की तरह हो, या जर्दी कोई चीज़ चाहे अंडे की जर्दी या कोई भी, उसके लिए सुफारुन, सुफारतुन आता है। ऐसे जुर्कुन, जुर्कुन माने होते हैं नीलापन, कोई चीज़ नीला है। ऐसे नुजरतुन, तरो ताज़ा, चमक दमक, खूबसूरत जो देखने में लगे। तो ये कुछ कलर के नाम थे और हमारे स्कूल में और घरों में हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, ये अल्फाज आप इस्तेमाल करते रहें, याद करते रहें, और फिर इंशाअल्लाह आइंदा कुछ और अल्फाज हम आपको लिखवाएंगे। चूँकि वक्त अब ख़त्म हो चुका है इसलिए आप मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह हम दूसरे दर्स में नए अल्फाज के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।